So, hello everyone, my name is Chandrakant Singh. I am Senior Mentor from PrepIS. In this discussion, I will be highlighting some important key areas that you need to revise and focus before appearing in 2025 prelims examination. As exam is approaching and there is only 6 days left behind, I have highlighted certain key substance in every subject that you need to focus in order to avoid basic silly mistakes in the examination. First, starting with the polity. All the important parts of the constitution shall be gone through. Last year, part 9, part 15 and part 20 was in the paper. Part 19 talks about Panchayati Raj, part 15 talks about election commission and part 20 talks about amendment of the constitution. After going with the important parts, you have to go through the important articles of the constitution. For example, articles associated with fundamental rights, fundamental duties, directive principles of state policies, articles associated with service under union and states, articles associated with tribunals, articles associated with emergency provisions, elections and amendment of the constitution. Last year article 368 was in the paper. After going through the important articles, you have to go through the important schedules of the constitution. Schedule 5 and Schedule 6 are generally seen in the paper. Previous year questions paper, you have gone through carefully. Schedule 5 which talks about schedule areas and Schedule 6 which talks about tribal areas was there in the paper. Last year Schedule 8 was asked, official language. After that you have to go through the union list, state list and concurrent list. Union list, state list and concurrent list is provided under Article 246 of the Constitution. Interstate quarantine was asked in the previous year paper, like 2024 prelims paper. Apart of these, you have to go through the recent amendment starting from 99th till 106th of the constitution. You have to go through 106th Constitutional Amendment Act talks about Nari Shakti Adhiniyam. After this, we will be moving forward to the governance. In governance, you need to go through the important welfare schemes. Important welfare schemes associated with the women, social security, child development, food security, physical disability, transgender. These are the important welfare schemes that you need to go through. With respect to the women, Janani Suraksha Yojana sometimes asks. With respect to the social security, Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana, Atal Pension Yojana, National Pension Scheme, New Pension Scheme. These will be asked in the examination. So you need to revise all these things. After the governance section, we need to go through the international relation. Some of the important agencies and organs of United Nations shall be gone through, like United Nations bodies, United Nations General Assembly, United Nations Security Councils, and it's all specialized agencies, World Health Organization, UNICEF, UNDP, UNEP, World Trade Organizations, IMF, World Bank, all these things you have to go through. Apart of that, you have to go through the important foreign trade agreement, free trade agreement. Recently, India has signed with any other countries. Like India has recently signed India-UK free trade agreement that you have to go through. After polity, we are going through geography section. So starting with the geography, in geography you have to go through the important physical features of the India. Starting with the mountain system. All the mountain systems of the North India, Northeast, Western India, South India has to be gone very carefully. Mountain system of the North India, जैसे Ladakh range, Jaskar range, Karakoram range, Greater Himalayas, Pir Panjal range, Dauladhar range. You have to see how it is chronologically arranged from north to south. UPSC may sometimes make a tricky question in the examination asking how it is organized or located in north to south direction. So Karakoram range कहाँ पे है, लद्दाख रेंज कहाँ है, जश्कर रेंज कहाँ है, हिमालयस कहाँ है, शिवालिक कहाँ है, हरिश्चंद्र रेंज कहाँ है, मैकाल रेंज कहाँ है. जैसे मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के पास. राजमहल हिल्स झारखंड में है, वेस्टर्न घाट साउथ इंडिया में. ऑल दीज रेंजेस के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, पासेस हैं और ग्लेशियर्स है, यू हैव टू ऑल्सो गो थ्रू दैट. जैसे कि आप पीक्स में कंचनजंगा पीक्स ऑफ सिक्किम, ऑल द पीक्स इन साउथ इंडिया का इंपॉर्टेंट पीक्स जैसे दोडा बेटा हो गया, नीलगिरी हिल्स हो गया. These are the important peaks that you have to go through.
नाउ गोइंग थ्रू द पासेस, यू हैव टू सी द इंपॉर्टेंट पासेस ऑन दीज माउंटेन रेंजेस। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में एक इंपॉर्टेंट पास हो गया रोहतांग पास। रोहतांग पास पे अटल टनल है। रोहतांग पास के बाद बनिहाल पास है, इट इज ऑल्सो ऑन द धौलाधर रेंज, पीर पंजाल रेंज, इट इज ऑन पीर पंजाल रेंज, नॉट ऑन धौलाधर। ठीक है, आफ्टर passes, जैसे these are the important passes that you have to go through. This you can see that the passes which are associated in Sikkim: Jojila Pass, Shipkila Pass, Rohtang Pass. Rohtang Pass पे ये अटल टनल is located there. Baralacha La Pass, Nathula Pass, Lepulekh Pass, Jelepla. These are the passes in the Sikkim. सिक्किम में है। बनिहाल पास, बनिहाल पास इज उधमनगर डिस्ट्रिक्ट में है, इसी के ऊपर जवाहर टनल बना हुआ है। खरदुंगला पास, लेह टू दी श्योक, नुब्रा वैली को कनेक्ट करता है खरदुलंग पास। बोमडीला पास, दीपू पास, पलकट गैप। आफ्टर दैट यू हैव टू सी द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स अलोंग द माउंटेन रेंजेस, जैसे कि सियाचन ग्लेशियर्स इन काराकोरम, जेमू ग्लेशियर्स इन सिक्किम, सिक्किम में है ये। फिर 12 सिंगड़ी ग्लेशियर इन चेनाब, छोटा सिंगड़ी ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, भदरपंच ग्लेशियर। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स। नाउ कमिंग टू द रिवर्स एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। अब आते हैं रिवर्स एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। यू हैव टू गो थ्रू द इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ ऑल द इंडियाज, मीन geographically how the river system are geographically located across the India, starting from the Indus, Brahmaputra, Ganga, Indus, Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Godavari, Krishna, Kaveri, Panar, Paleru. These all the river system were asked in the UPSC previous year paper. So now these river system shall also be gone through with respect to the important lakes associated with it. जैसे वुलर लेक, वुलर लेक कहाँ पे है? झेलम रिवर पे है। कोलेरू लेक you have to see it is in आंध्र प्रदेश, कांवर लेक is in बिहार, चिल्का लेक इज इन ओडिशा, लोकतक लेक इज इन मणिपुर, सांबर लेक इज इन राजस्थान, पुलिकट लेक इज इन तमिलनाडु, वेम्बनाड लेक इज इन केरला, नैनीताल लेक, डल लेक, पैंगोंग लेक जम्मू कश्मीर में है, भोजताल एमपी में है, रेणुका लेक इज इन हिमाचल प्रदेश। सो यू हैव टू गो टू केवलदेव घना नेशनल पार्क राजस्थान में है। फिर आफ्टर दिस यू हैव टू गो विद द इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स एसोसिएटेड विद दीज ऑल द रिवर सिस्टम, जैसे दूध सागर वाटरफॉल, दूध सागर वाटरफॉल, एथरीपल्ली फॉल, शिवा सुमंद्रम फॉल्स, नोकाइली काल फॉल्स, हुंडरू फॉल्स, कुंची काल फॉल्स, इरुपू फॉल्स, चित्रकोट फॉल्स, हेबी फॉल्स. So these are the important waterfalls that you have to go through. Last year there was one question from the falls as well, waterfalls as well. फिर next topic is wetland. You have to go through the important wetlands of the Indias. टोटल वेटलैंड्स अभी इंडिया में कितना है, इनलैंड वेटलैंड एरियाज कितना है, कोस्टल वेटलैंड एरियाज कितना है, अभी रिसेंटली कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स अभी रामसर साइट के अंदर ज्वाइन किए गए हैं, स्टेट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखनी होगी. एसोसिएटेड आपको एक बार रामसर कन्वेंशन भी इस पे देखना होगा कि रामसर कन्वेंशन हाउ इट इज इट लीगली बाइंडिंग और नॉट, इट यू हैव टू सी दैट एज वेल. उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेजिटेशन. यू हैव टू सी इंडिया में वेजिटेशन किस तरह का है, व्हाट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस आर फाउंड इन इंडिया. सिंस इंडिया इज बेसिकली लाइंग इन द ट्रॉपिकल बेल्ट, सो मोस्ट ऑफ द वेजिटेशंस आर फाउंड इन इंडिया आर ट्रॉपिकल इन नेचर. हाउएवर इन द हिमालयन रीजन वी ऑल्सो हैव अ टेम्परेट वेजिटेशन टाइप. तो ट्रॉपिकल में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है इंडिया में. इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है, एरिड एंड डेजर्ट फॉरेस्ट मिलता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किस तरह की ट्रीज मिलती है, जैसे महागनी हो गया. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में हमारा टीक मिलता है. टेम्परेट फॉरेस्ट भी इंडिया में है, जम्मू कश्मीर रीजन में, हिमाचल रीजन में, यहाँ पे मैपल ट्रीज मिलते हैं जिनको चिनार बोलते हैं. एग्जाम वाले दिन ये सारे क्वेश्चंस होंगे पेपर में. आपने पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस थिंग. जैसे प्रीवियस ईयर में टीक पूछा है इन लोगों ने, रोहोडेंड्रॉन पूछा है कि रोहोडेंड्रॉन किस क्लाइमेटिक कंडीशन में मिलता है, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट ऑल द इंपॉर्टेंट. इसके बाद नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टॉपिक ऑल द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यू हैव टू गो थ्रू. सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको एक बार देखने होंगे. टोटल अभी कितने नेशनल पार्क हैं, स्टेट वाइज भी देखना होगा आपको, और उसमें ये देखना होगा कि इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स अभी रिसेंटली कौन कौन से ऐड हुए हैं. ठीक है.
फिर नेशनल पार्क से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पावर है, यू नीड टू चेक दैट एज वेल। ठीक है, आफ्टर दिस ISFR रिपोर्ट। आफ्टर दिस आपको एक ISFR रिपोर्ट देखनी होगी 2023 वाली। इसमें आपको फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज देखना होगा और परसेंटेज वाइज देखना होगा, किस स्टेट में कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का और कितना एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का। जैसे MP में सबसे ज्यादा एरिया वाइज है, बट परसेंटेज वाइज नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको सॉइल्स देखना होगा, किस किस टाइप के सॉइल्स इंडिया में मिलते हैं। अलूवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, उनके ऊपर कौन सा कल्टीवेशन, बेटर कल्टीवेशन क्रॉप्स होता है। जैसे अलूवियल सॉइल पे, ब्लैक सॉइल जैसे रेगुलर सॉइल है तो उस पर कॉटन कल्टीवेशन होता है। लेटराइट सॉइल पे चेशू नट का कल्टीवेशन होता है। अलूवियल सॉइल पे ज्यादातर हमारे यहाँ पे इंडिया में राइस, व्हीट, इनका कल्टीवेशन होता है। सो नाउ मेजर क्रॉप्स after soil you have to go through the major crop section, means India people and economy section। India people and economy में आपको सारे इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स देखने होंगे, राइस, व्हीट, कैश क्रॉप्स भी देखना होगा। इनका क्लाइमेटिक कंडीशन भी आपको चेक करना होगा और इनका सॉइल रिक्वायरमेंट भी चेक करना होगा। जैसे टी इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप एंड इट इज मोस्टली कल्टिवेटेड इन अ एरिया और इन अ सॉइल विच इज वेल ड्रेन्ड इन नेचर। किसी भी सॉइल में प्रॉपर्ली पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना वो उसका कल्टीवेशन उसमें नहीं हो पाता है टी का। इसी तरह से यू हैव टू गो थ्रू द इंपॉर्टेंट मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स देखना होगा, फेरस, नॉन फेरस मिनरल्स, ये NCERT में मिल जाएगा देखने के लिए। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस आपको देखनी होगी। इंडिया में अभी रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी हमारा कितना है विद रिस्पेक्ट टू द सोलर एंड विंड, बायो, हाइड्रो एंड ऑल। ठीक है, सोलर की कैपेसिटी आपको चेक करनी होगी, प्रेजेंट में कितना है, विंड कैपेसिटी कितनी है। लास्ट टाइम मैंने जो न्यूज में देखा था तो वी आर ऑन 3rd नंबर, वी हैव क्रॉस्ड जर्मनी एंड वी रीच एट द 3rd नंबर। ठीक है, ऑल द इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स आपको देखना होगा। लास्ट ईयर मैंने एक क्वेश्चन देखा है पोर्ट्स पे भी और एयरपोर्ट्स पे भी। पोर्ट्स यहाँ पे सी वाले पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स पे भी क्वेश्चन पूछा था उन लोगों ने कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड, now going ahead with respect to the history part, ancient में UPSC प्रिफरेबली जो क्वेश्चंस पूछता है वहां बुद्धिज्म, जैनिज्म, हड़प्पन की साइट्स, मौर्यन की साइट्स, गुप्ता का आर्किटेक्चर और सोशल स्ट्रक्चर। तो हड़प्पन के साइट से क्वेश्चन होगा, वैदिक फिलॉसफी से क्वेश्चन होगा, बुद्धिज्म, जैनिज्म से एक डेफिनेटली क्वेश्चन होगा, मौर्यन के एडिक्ट्स और साइट से एक क्वेश्चन रहेगा, कुषाण के पीरियड और उनके स्कॉलर से क्वेश्चन रहेगा, गुप्ता के सोशल और टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन रहेगा। गुप्ता का सोशल मतलब सोसाइटी उस टाइम पे कैसे स्ट्रक्चर था, उस पर एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद फिर एंशिएंट नहीं, इट इज मिडाइवल। मिडाइवल से टेक्निकली जो क्वेश्चन आएगा वो राजपूत रूलर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा एक क्वेश्चन कि हाउ द राजपूत रूलर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्ली मिडाइवल एजेस। फिर एक क्वेश्चन भक्ति मूवमेंट से रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा दिल्ली सल्तनत उस टाइम पे कैसे इन्वेजन्स आए थे उस पे क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर से डेफिनेटली रहेगा। विथ रिस्पेक्ट टू द मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन वहां पे डिवाइडेड रहेगा दो पार्ट में, एक रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर से और दूसरा रहेगा क्वेश्चन आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन रूल के गवर्नेंस स्ट्रक्चर से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, एजुकेशन सिस्टम कैसा था, उनका लोकल गवर्नमेंट कैसा था, एक्सपेंशन उन्होंने कैसे किया, जैसे रिंग ऑफ फेंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, ये सारी चीजें, ऑल ऑफ द एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स आए थे उनसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट टिल 1947 तक का एक्ट आपको केयरफुली पढ़ के जाना है। ठीक है, इसी तरह से क्राउन रूल्स के टाइम पे जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट, बिल्डिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट के बाद होम रूल मूवमेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट एंड फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस। तो यहां तक का पूरा नेशनल मूवमेंट आपको एकदम क्लियरली क्रोनोलॉजिकल इवेंट में पता होना चाहिए, वरना एग्जाम में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल आई हैव क्लियरली मेंशन्ड हियर।
फ्रीडम स्ट्रगल में मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया, आफ्टर 1858 होम रूल, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन एंड आफ्टर माउंटबेटन प्लान। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री पार्ट। नाउ गोइंग विद द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी आपको बेसिक इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट, इन्फ्लेशन, बजटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे एसोसिएटेड जितनी स्कीम्स एंड पॉलिसीज है वो, उसके अलावा लिबरलाइजेशन से एक क्वेश्चन हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसीज में जितने भी हमारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, SLR, CRR, ये सारी चीज़ों का कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। बजटिंग में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ करंट अकाउंट, व्हाट इज़ कैपिटल अकाउंट, जिसका आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में मिस्टेक हो सकता है। इसके बाद फिर एक करंट अफेयर्स आपका लास्ट 7 मंथ का टिल अप्रैल तक आपका पूरी तरह से क्लियर कट होना चाहिए। इसके अलावा एक प्रेसिडेंट की स्पीच आई थी 31 जनवरी को 2025 में, ये आपको क्लियरली देख के जाना है। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम और गवर्नमेंट स्कीम्स की बात हुई है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी दैट। इसके बाद नेक्स्ट, इंडिया एयर बुक में लास्ट 4 पेजेस में जो गवर्नमेंट की डायरी होती है, जिसमें पूरे न्यूज़ की एक डायरी होती है, उसको आपको क्लियरली देख के जाना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द 2025 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दैट यू हैव टू गो थ्रू। ये सारी चीज़ें आपको एक बार ज़रूर देख के जाना चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन, इन ऑर्डर टू हैव अ कंट्रोल ऑन द स्टैटिक एरिया ऑल्सो एज द करंट अफेयर्स पार्ट। सो बी काम इन द एग्जामिनेशन, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज बेसिकली asking the conceptual part, which question is asking the static and the fact part, and which question is asking about the current affairs part. So don't be panicked in the examination. If you feel like that question is not very much in my domain और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है इसके बारे में, तो वहाँ पे वाइल्ड गेस नहीं करने की ज़रूरत है। So अभी यही चीज़ लेके चलना होगा। So all the best for the examination and yes, thank you so much. Okay.